Jain students, so today I am starting exercise 5.1 from the chapter ratio and proportion. This is question number 1. The sum of three numbers in the ratio 3:5:6 is 560. Find the middle number. कहता है आपके पास तीन नंबर हैं जिनका रेशो 3:5:6 है और उनका जो टोटल है उनका जो सम है 560 है. तो फाइंड द मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर निकालो. यस, लुक. let the numbers are जो आपको गिवन है, किस रेशो में गिवन है आपको 3, 5 और 6. 3x 5x एंड 6x. अब कहता है कि इनका जो सम है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इनका की जो सम है वो सम क्या होगा. पहले तो देखो 3x प्लस 5x प्लस 6x कितना हो गया. 3 एप्पल 5 एप्पल 6 एप्पल 14 एप्पल्स 14 एप्पल. वो कहता है दिस सम इज 560. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x हियर. देखिए 14 और x के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन. देयरफॉर फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, this 14 will come this side and divide 560. So this will become 560 upon 14. You will get 40. You will get 40. Okay. What is the value of x here? 40. Therefore, the middle number जो मेरे को चाहिए, middle number is, देखिए बेटे मिडिल नंबर क्या है यहाँ पे 5x. 5x. What is the meaning of 5x? कि 5 और x का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ x 40. तो दैट इज 200 इज द आंसर. 200 इज द आंसर. क्लियर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. गिवन है x अपॉन 4 इज इक्वल टू, गिवन x अपॉन 4 इज इक्वल टू y अपॉन 5. You have to find of x ratio y. Just look here. For finding the value of x, just look here. 4 is dividing x. Therefore, this 4 will come to the right hand side. Since it is dividing x, here it will go and it will become multiplied. So 4 into y upon 5. Now just look here. Here is x. Look at this y. This y is multiplying here. This will go here, this side, left hand side, and it will divide. So what will happen? X upon y is equal to 4 upon 5. And क्या पूछा है क्वेश्चन में, x रेशियो y. तो x रेशियो y क्या हो जाएगा बेटा 4:5. ठीक है, क्योंकि कोई भी जो आपका एक फ्रैक्शन है x अपॉन y मीन्स इसका मीनिंग क्या है x रेशियो y. देयरफॉर 4 upon 5 मीन्स 4:5. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. कि फाइंड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 4 and 16. तो लेट थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 4 and 16 is x. Therefore what will happen? 4:16 should be equal to 16:x. 16:x. देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट्स मीनिंग इज 4/16 इज इक्वल टू, देखिए 16:x का मतलब क्या है 16/x. 16/x. Now we will do the cross multiplication. Look here. This x will come here. X into 4. 4x is equal to 16 into 16. अब यहाँ पे देखिए 4 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन साइन. तो therefore x will be, ये 4 क्या करेगा बेटा इधर जाके डिवाइड करेगा. ठीक है, अब 4 से आप इसको रेड्यूज आउट कर लो. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. क्या बच गया यहाँ पे 16 मल्टीप्लाइड 4 डिवाइड बाय 1. दैट इज 64/1. 64/1 means 64. Therefore, what is the value of x?
64 और x क्या है यहाँ पे मेरा थर्ड प्रोपोर्शन है, क्या है थर्ड प्रोपोर्शन। तो देयरफॉर आवर थर्ड प्रोपोर्शन इज 64। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, it is given 40% of x, 40% of x is given 50% of y. Okay, what is the meaning of this? 40%, 40 upon 100. Of means multiplication. This will be x and this will be 50% means 50 upon 100. Of means this is y. Okay, now we have to find the value of x ratio y. जैसे इस क्वेश्चन में निकाला था x ratio y, तो फर्स्ट आई विल फाइंड x upon y, x upon y. Just look here, first we will do this cross multiplication here. So first look what will happen, 40, this will become 40x upon 100 is equal to 50y upon 100. Now do the cross multiplication. So what will happen, 40 into x into 100, 40 into x into 100 is equal to this one 100 into 50 into y. Clear? Now just look here, this is 40 into 100 पहले लिख लिया, 100 into x, this could be equal to this 100 into 50 into y. अब यहाँ पे देखिए x के साथ 40 और 100 का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों नंबर राइट हैंड में जाके डिवाइड करेंगे। तो व्हाट विल हैपन, देयरफॉर x will be, just look here, what is in the right hand side, 100 into 50 into y, 100 into 50 into y और डिवाइड y, वो जो दो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई थे they will divide. तो what will happen, just look here, this 100 and 100, okay, 10 से डिवाइड कर लो इसको, 10 4 जा 50 और 10 5 जा 50, 100 1 जा 100, 100 1 जा 100. So what will left here, 1 into 5 into y divided by 4 into 1. तो क्या हो जाएगा, 1 into 5 into y, दिस विल बी 5y अपॉन 4. यानी क्या वैल्यू आ गई बेटे, x की वैल्यू आ गई 5y अपॉन 4. अब यहाँ पे देखिए 5 और y के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल. तो क्या कर देंगे यहाँ पे, ये y जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड करेगा. तो व्हाट विल हैपन, x upon y is equal to, look there, what will left here, 5 upon 4. Therefore ratio will be, x ratio y will be 5 ratio 4, 5 ratio 4, and it should be there, yes. Coming to question number 5, length and width of a rectangle are in the ratio 5:4 and the area of the rectangle is 500 centimeter square. Find the perimeter of the rectangle. Suppose this is your rectangle. Okay. So let length of rectangle is equal to this. Therefore the breadth of rectangle, just look here, किस रेशो में है बेटे, 5:4. लेंथ एंड विड्थ आर इन द रेशो 5:4. तो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया, we can take them 5x
और 4x, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। नंबर किस रेशो में थे? 3:5:6। तो हमने क्या ले लिया? 3x, 5x एंड 6x। तो इसमें भी क्या ले लेंगे? 5x एंड 4x। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन what you are given, and the area of a rectangle is 500 centimeter square. Since area of rectangle is given by length into breadth, तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड मीन्स व्हाट इज अवर लेंथ? 5x इंटू 4x। ठीक है, अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें पहले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इंटू एक्स और x इंटू एक्स। देखिए पहले नंबर का मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20x इंटू एक्स। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 20x पावर 2। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में कि जैसे 2 इंटू 2, सिंस 2 square can be written as 2 into 2. It means 2 into 2, this can be written as 2 square. क्यों बेटे? अगर 2 स्क्वायर को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं तो 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से x इंटू एक्स कैन बी रिटन एज 20x स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, एंड दिस एरिया इज गिवन। Now this area 20x square is given how much? Just look the question. This is given 500. ठीक है, now what will be the value of x square from here? 20 और x square का multiplication है। This 20 will go to the right hand side and it will divide. Now divide it. This will become 25. It means x square will be 25. ओके, नाउ अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर जरा दिमाग में लाओ। उसमें अगर स्क्वायर इसका 25 है, ठीक है, तो कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 25 मिलता है? दैट इज, ये कौन सा वो नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके 25 मिलता है? तो दैट इज व्हाट? 5। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 5 इंटू 5, दैट इज 5 स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर क्या है बेटा आपका? 5 स्क्वायर। यानी अगर एक्स स्क्वायर 5 है, एक्स इंटू एक्स 5 है, तो इफ एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 5, इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 5। क्या वैल्यू हो गई एक्स की? 5। देखिए अगर एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स और 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, एक्स इंटू एक्स 5 इंटू 5 है, तो इसका मतलब एक्स की क्या लिखा हुआ है? 5। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है बेटा? 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आप देखिए यहाँ पे हमने इसका ये निकाला था, लेंथ कितनी निकाली थी? 5x, यानी ये 5x है, और ये ब्रेथ क्या है? 4x। ब्रेथ क्या है इसकी? 4x, और लेंथ क्या है? 5x। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ देखिए 5x और ब्रेथ देखिए 4x। कितना हो गया बेटा? 2 इंटू यहाँ देखिए 5 एप्पल प्लस 4 एप्पल्स, 9 एप्पल्स। और यहाँ पे क्या है? मैंने पहले बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर ऐसा कोई नंबर लिखा हो तो उसका इसके साथ क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। दैट इज 2 मल्टीप्लाइड 9x। कितना हो जाएगा बेटा? 18x। और यहाँ पे जो आप x की वैल्यू पुट कर दो, 18x मतलब 18 मल्टीप्लाई विद x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हियर इज 5। 18 5 जा 90, और पेरीमीटर है, पेरीमीटर मीन्स दिस लेंथ, सम ऑफ हेयर 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 हेयर, यानी क्या है? ये एक टाइप से लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल दैट इज 90 सेंटीमीटर, और ये आपके ऑप्शन में है। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।